लेट्स लेट्स डू द क्वेश्चन बेटा, देखिएगा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन स्लोली लिखेंगे. So this question says that 1 mole of SO2 occupies 1 mole occupies 24 decimeter cube, which is wrong because Avogadro said 22.4, but this question is saying 24. Now this is happening because the gas is not at STP. 22.4 लीटर्स जो होती है वो किस पे होती है? STP पे. और ये रूम टेम्परेचर पर है और प्रेशर भी रूम वाला ही है, तो इसलिए वॉल्यूम हो गई है 24 डेसीमीटर क्यूब. 24 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 24 लीटर्स. लीटर्स ही होता है. फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या बोलते हैं. कैलकुलेट द फॉलोइंग एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. कैलकुलेट द मास ऑफ 6 लीटर्स ऑफ SO2. सो हमें निकालना है मास ऑफ SO2 और वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना दिया है बताइए. कितना? 6 लीटर्स. बताइए, क्लियर है? ये कहां से आया बेटा? क्वेश्चन से. सेम आप कहां से लाएंगे? फॉर्मूला से. अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ SO2 तो आप कहेंगे सर ये तो ग्राम मोलिकुलर मास SO2 का निकालना पड़ेगा. सल्फर का 32 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2. कितना आ गया बताइए फॉर्मूले से? 64 ग्राम. तो मास ऑफ SO2 आ गया 64 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ SO2 should be 22.4, but no, it is 24 liters. 24 लीटर क्यों है? क्योंकि ये कौन से टेम्परेचर पर है? रूम टेम्परेचर. अगर एससीपी पे होता तो सीधा लिखते हैं 22.4. दो चीज क्वेश्चन से आती हैं, वही दो चीज फॉर्मूला से. जहां पर भी दोनों गिवन है वहां से स्टेटमेंट बनाएंगे. फॉर्मूला में दोनों गिवन है, स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे कि अननोन एंड में है. अननोन है मास, यहाँ पे देखिए ये अननोन है ना, तो बोलेंगे 24 लीटर्स ऑफ SO2 हैज अ mass of what grams? 64 grams. So 1 liter of SO2 has a mass of 64 by 24 grams. ये सुनो. और हमें निकालना कौन सा मास है, कितने लीटर का? 6 liters of SO2 will have a mass of 64 upon 24 into 6 grams. 6 4s are 4 16s are. Answer is 16 grams. Easy. Easy. बहुत बेसिक है. What did the question say? Question said, find the mass of, I am writing the question. It was, find the mass of 6 liters of SO2. Now, let's do the second part. Second part says, find the volume occupied, find the volume occupied by 80 grams of SO2. Find the volume occupied by 80 grams of SO2. Again, the same pattern. Two things will be discussed in the question. Okay, beta? Find the volume. हमने लिख दिया volume of SO2 equals to question mark. Tell me mass of SO2 is what? 80 grams. Yes or no? This is coming from the question. Same I'll write from the formula. Same I'm going to write from the formula. Formula से बताइए volume of SO2 कितना है? 24 डेसीमीटर क्यूब. मास ऑफ SO2 फॉर्मूला से बताइए कितना है? फॉर्मूला मुझे ऊपर लिखा है. दिस इज द फॉर्मूला. Yes or no? So mass of SO2 will be how much? 64 grams. Now we'll make the sentence either from the question or from the formula. Yes or no? Sorry. Either from the question or from the formula. Akriti is right, from the formula. Very good. How will we form the sentence? We'll form it in such a way that what will come at the end? Unknown. What is unknown? Volume. So I write 64 grams of SO2 occupies. Such a good question, बेटा. देखिए कितना बढ़िया कंपैरिजन आ रहा है. लेफ्ट में भी मास वॉल्यूम डिस्कस हो रहा है, राइट में भी मास वॉल्यूम डिस्कस हो रहा है. बट लेफ्ट में सेंटेंस अलग बनाया था और
कृतिका, कृतिका, कृतिका देखो बेटा, 64 grams of opposite बनाया सेंटेंस। कृतिका बेटा आया, 64 grams of SO2 occupies 64, 24. So 1 gram of SO2 occupies what? 24 upon 64 decimeter cube. And we are supposed to find for how many grams? 80. यहाँ पे देखिए, ये निकाला ना आपको क्वेश्चन, तो ये है 80 grams का निकाला, तो 80 grams of SO2 will occupy 24 upon 64 into 80 decimeter cube. 8 tens are 8 eights are 8 threes are. So answer is 30 decimeter cube. Pattern is very simple. You can even use ratio proportion method. But pattern is very simple, beta, and simple and basic. Clear? Chaliye. Then we'll do the next part, the third part of this. Third part of this is also very good. Let's see the third part. Copy quickly. Third part says number of molecules. Number of third part. I'm writing the question. Find the number of molecules in 0.64 grams of SO2. But the question doesn't stop here. It says if 1 mole contains, बदल दिया, formula बदल दिया, n molecules. Avogadro said that 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 3 molecules. But इधर क्वेश्चन में ये बदल दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं, साफ साफ बताया पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स, और बताया वो 6.023 नहीं है, कितने हैं, एन। क्लियर? फॉर्मूला फॉर्मूला चेंज्ड, फॉर्मूला चेंज। इज दिस क्लियर टू यू? व्हाट इज द फॉर्मूला? Number of particles we generally take as what? 6.023. But here, number of particle is what? N. Is that clear? So now when I form the sentence, two things will come from the question, two things will come from the formula. Let's write down. Question says find the number of molecules. So number of molecules, question mark. एंड खुद ही नहीं, वो क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि 1 मोल में n मॉलिक्यूल है। जैसे 1 मोल का वॉल्यूम भी बताया था 24 इस क्वेश्चन में, वैसे ही बोला है 1 मोल का मॉलिक्यूल कितने हैं, n। तो पहले क्वेश्चन, हाँ रुकिए, n के टर्म्स में आएगा आंसर। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, में लिख दिया 0.64 ग्राम। तो क्या है बेटा, मास ऑफ SO2 कितना दिया है, 0.64 ग्राम। नाउ लेट्स सी व्हाट विल कम फ्रॉम द फॉर्मूला। नंबर ऑफ molecules from the formula is what, n, एंड मास कितना है बताइए, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ SO2 कितना है फॉर्मूला में, 64 ग्राम। हमें निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेंटेंस फॉर्मूला से बनेगा, ऐसे बनेगा 64 grams of SO2 contains what, n molecules. So 1 gram of SO2 contains n upon 64 molecules. So 0.64 gram of SO2 contains what, n upon 64 into 0.64. बेटा दिस इज तो सिंपल रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसमें है क्या बताइए, वो ही कर रहे हैं हम बार बार। दो चीजें क्वेश्चन में डिस्कस हो रही हैं, दो चीजें क्वेश्चन में डिस्कस हो रही हैं, वही दो चीजें हम फॉर्मूला से लेके आ रहे हैं और सेंटेंस बना रहे हैं यूनिटरी मेथड का वहां से। अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन है क्वेश्चन से, फॉर्मूला में दोनों गिवन है तो फॉर्मूला से, और सेंटेंस भी बेसिक तरीके से बनाने, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अंडरस्टूड नॉट? क्लियर बेटा? Easy. Let's do the last part also. Weight of, this is very important. Copy this. I'll just erase this part. Fourth part is weight of 0.5 gram molecule. ये खतरनाक बात है।
देखिएगा ध्यान से, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और सिंपल मेथड भी बताएंगे। बोला है फाइंड द वेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। कुछ याद आ रहा है आपको क्या बताया था ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब कल? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही। ग्राम एटम्स मींस मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर? लेट्स सी बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऑफ SO2, मैंने आपको बताया है कि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन बोला फाइंड द वेट ऑफ, मुझे बताइए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितना होगा? 1 मोल का वजन कितना होगा SO2 का? 1 मोल मतलब फॉर्मूला लिखा तो है सामने, 64 ग्राम। 64 ग्राम तो है, 1 मोल का 64 ग्राम, है ना? अगर 1 मोल का 64 ग्राम है, तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, हमें निकालना कितने मोल्स का है? 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल है ना वहां पर लिखा हुआ, कितने कितने मॉलिक्यूल्स का निकालना है बताइए हमें, एक कितने मोल का निकालना है? हमें निकालना है वेट ऑफ 0.5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। कितना हो जाएगा बताइए? 64 इंटू 0.5, कितना आएगा बताइए? 64 इंटू दैट 0.5 बेटा इन मल्टीप्लीकेशन। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, कितना आएगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसे? 32। आगे 32 आंसर, देन आई गिव यू द अदर मेथड आल्सो, 32 ग्राम्स। और नॉर्मल मेथड देखिए, ये तो क्लियर हुआ, ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भाई 0. 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 0.5 व्हाट? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मेथड देखिए, वी नो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल 0.5 ग्राम, ये मैंने आपको कल ही बताया था। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, पहले वाली वीडियो में देखे था ना हमने, इससे पहले जो डिस्कशन हुआ है देखिएगा। ग्राम मॉलिक्यूल इज 0, ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम्स अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए मास इन ग्राम्स कितना आएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आता है ऑक्सीजन का? मॉलिक्यूलर मास SO2 का, सॉरी, 64 ग्राम्स, 0.5। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड सोल्यूशन बेटा, ये तो हमने फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग कर लिया। 0.5 कितना आएगा? 32 तो आएगा, सीधा लिख दीजिए। नीचे फॉर्मूला वाला बता दिया आपको, ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया है। दूसरा जो हमने मेथड किया है बताइए वो क्या है? दैट इज व्हाट? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। चलिए बेटा, आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज, लेट्स सी, आई एम, बस स्टॉप हो गया फिर क्वेश्चन। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर क्वेश्चन रुक गया। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक ही चीज डिस्कस हो रही है हर एक पार्ट में, फिर रुक गया क्वेश्चन। फोर्थ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर खत्म हो गया, एक एक चीज डिस्कस हो रही है। देखिए फिफ्थ, डैश इन 294 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
And it is given that H is 1, S is 32, and O is 16. This we know. O is what? 16. It's not coming, but it's fine. You know O is 16. Let's write the formula first. We know mole is 1. ग्राम मोलिकुलर मास कितना आएगा बताइए H2SO4 का? हाउ? H2SO4 का ना बेटा, हाइड्रोजन इज 1, 1 into 2 plus sulfur is 32, oxygen is 16 into 4, so it will come 98 grams. Beta, this we are writing the Avogadro number, mole, everything for ourselves. हम पूरा फॉर्मूला बना रहे हैं. वॉल्यूम बताइए कितना होगा? Assuming that it is at STP 22.4 liters. And what will be the number of particles? Now tell me, sulfuric acid will have atoms or molecules? सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं? सिंपल, मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बताइए क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का नंबर 023 इंटू 10⁻23. आप अभी कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने यहाँ n लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 1 मोल में n पार्टिकल्स. आप बोलेंगे सर 24 डेसीमीटर क्यों लिखा था? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि 1 मोल का वॉल्यूम 24 है एट रूम टेम्परेचर. चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन मार्क, और दिया हुआ है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. कितना दिया हुआ है? 294. ये दोनों चीजें आई बेटा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया है ना. तो अब सेम दो चीज आप कहां से लाएंगी? फॉर्मूला से ले आते हैं. क्या होगा बताइए फॉर्मूला से? फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखा है? 1. और मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आएगा बताइए? कितना है? 98 ग्राम. फिर वही यूनिटरी मेथड. सेंटेंस बताइए क्वेश्चन से बनेगा या फॉर्मूला से? फॉर्मूला से. और ऐसे बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स लास्ट में है तो हम बोलेंगे 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड makes up 1 mole. So 1 gram of sulfuric acid will make 1 upon 98 moles. So 294 grams of sulfuric acid will make 1 by 98 into 294 mole. Is this clear or not? 98 how much? 98 threes are. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 moles हैं. Understood or not? Is that clear? So we're going to close this today. Avogadro finish हो जाएगा बेटा आज. And the only topic that will be left would be chemical equations, and you'll find it easy. Clear? I'll give you a break of 1 day. You can practice all the questions and then ask if you have doubts. Let's do the second part. Easy. Second part में देखिए क्या बोला है बेटा? Number of molecules. So लिख दीजिए number of molecules question mark in mass of how much? H2SO4 is 294. जरूरी नहीं है कि आप इसी से निकालें, आप मोल से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान रहेगा. मोल आपको पता है कितने मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के आपके पास? 3 मोल्स है. एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02. तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू. यू कैन डू दैट ऑल्सो. Sir, you are muted. Sir, you are muted.
Sir, you are muted. तो बताइए 7 क्यों है 7 क्यों है 7 सल्फ्यूरिक एसिड में 7 एटम्स क्यों है एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए 7 एटम बताइए अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड में 7 एटम है तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड में कितने होंगे 2 into 7 3 में 3 into 7 4 सल्फ्यूरिक एसिड 4 into 7 5 में 5 into 7 29 में 29 into 7 35 में 35 into 7 into 7 कर देंगे ना ठीक है सो ये जो टोटल मॉलिक्यूल्स आए हैं इनमें कितने एटम्स होंगे बेटा into 7 है ना सो अगर मैं पूछूं आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 294 grams of H2SO4 equals to नीचे लिख रहे हैं होगा बेटा ये 7 into जो टोटल एटम्स आपके पास है what is 7 3 are 21 into 6.023 beta is this clear to all of you हाँ जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है कितने मॉलिक्यूल क्यों है हमारे पास हाँ एक मॉलिक्यूल में 7 एटम होते हैं हमने काउंट कर लिया 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर इतने सारे जो आए 3 into समथिंग उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए अभी सुनिएगा फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है फोर्थ पार्ट copy this much first copy quickly then we'll do the next part then we'll do the next part copied next part says number of hydrogen atoms tell me how many hydrogen atoms are there in one sulfuric acid two एक सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन H2SO4 वन H2SO4 कितना है 2 सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा बेटा 2 into टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 3 into 6.023 into 10 is about 23 and what is 3 to the 6 into 6.023 into 10 is the power and then we'll do the last question see this type is clear मॉलिक्यूल आने के बाद हम इंडिविजुअल एटम्स का नंबर भी निकाल सकते हैं जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड के एटम्स मॉलिक्यूल्स तो आ गए अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई हाइड्रोजन कितना होगा तो आप उसको दुगना कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन कितना होगा तो उनको क्या कर देंगे आप 4 टाइम्स क्यों क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन होते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए अगर पूछा सारे एटम्स बताइए तो क्या होगा हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन तीनों के 7 से मल्टीप्लाई पक्का अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा लास्ट टाइप फॉर दिस व्हिच वी हैव टू फाइंड द मोल्स नंबर ऑफ आयंस या फिर मोल्स ऑफ आयंस चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन कैन कम इन एमसीक्यू and I don't think so there it needs any calculation don't have to show any calculation for this all the copy chaliye let's see next question check quickly question says I am writing the question if gases A B and C are arranged in increasing order of their relative molecular mass
and the mass of each gas is 10 grams, state which gas will contain least number of molecules and which the most. Let's see, there are three gases. How many gases are there? तीन gases हैं हमारे पास, A, B और C. और बोला A हल्की है, B उससे भारी है और C उससे भी ज्यादा भारी है. चलिए ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए A जो है वो बलून है, हल्के. B कॉस्को की बॉल है, ठीक है. C जो है वो टेनिस बॉल जो आती है, C लेदर की बॉल है, ठीक है. सबसे भारी कौन हुआ? C. सबसे हल्का कौन हुआ? A. सबसे भारी कौन हुआ? A. हल्का कौन हुआ? C. समझ है A, B और C. और तीनों चीजें हम 10-10 ग्राम लाएंगे. तीनों चीजें हम 10-10 ग्राम लाएंगे. हमसे पूछा है कि बताइए ज्यादा पार्टिकल किसमें होंगे, आप सोच के बताइए. ज्यादा लेदर की बॉल होंगी या ज्यादा बलून्स होंगे या ज्यादा कॉस्को की बॉल होंगी? ए. बिल्कुल सही, ए ज्यादा होंगे क्योंकि ए हल्के हल्के हैं, उनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कम है. 10 ग्राम में वो क्या होंगे? ज्यादा. सीधा आंसर लिखेंगे इसमें, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए इसमें. कितना होगा? कौन होगा? सी. एंड मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा ए. वाई ए? बिकॉज ए का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है. तो अगर वो हल्की चीजें आप लेके आएंगे तो बहुत सारी आएगी. आप मैंगो लेके आइए 1 kg. 1 kg मैंगो में अगर वो येलो वाला बड़ा वाला अल्फांसो जो आता है टाइप सा, वो लेके आते हैं अगर आप बड़ा वाला, तो 1 किलो में 2 ही आएंगे. 1 किलो में कितने आएंगे मैक्सिमम? बट अगर आप रस ला रहे हैं बेकरी से, सोचिए 250 ग्राम में कितने सारे आते हैं. 1 किलो में कितने सारे आएंगे? 4 पैकेट आ जाएंगे 1 किलो में. क्यों? क्योंकि वो हल्के हैं तो ज्यादा नंबर में आएंगे और जो भारी है वो कम नंबर में. इजी क्वेश्चन. वर्किंग कोई लॉजिकल वर्किंग नहीं है. अगर आप इसे वर्किंग करना चाहते हैं तो आपको असम्पशन करने पड़ेंगे बहुत सारे. इसका मास x मान लीजिएगा, इसका 2x और इसका 3x. और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए 10 ग्राम अपॉन x. पहले वाले का हो गया 10 ग्राम में x है. इसका क्या होगा? 10 ग्राम अपॉन 2x इसका, और इसका हो जाएगा 10 ग्राम अपॉन 3x. वर्किंग भी कर सकते हैं. फर्स्ट वाला है 10 अपॉन x, दूसरा आ रहा है कितना x? 5 अपॉन x. कम हो गया. और तीसरा कितना आएगा? लगभग 3.33 अपॉन x. सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में आ रहे हैं? फर्स्ट में 10 अपॉन x. सबसे कम किस में आ रहे हैं? 3.33 अपॉन x. ठीक है. एग्जाम में अगर ये आया, आई थिंक सो इट विल कम एज एन एमसीक्यू. इट विल नॉट कम एज अ क्वेश्चन. ठीक है. और अगर होगा भी तो डायरेक्ट आंसर एक्सेप्टेबल. समझे आप? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एंड देन वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक, एवोगाड्रो लॉ. Okay. Let's see the last question, and this one is very easy. It will hardly take 3 minutes. I'm writing the question. Let's see question 13. Calculate the number of moles of zinc ions, कोई दिक्कत नहीं है, and chloride ions which will be obtained from 272 grams of ZnCl2, where Zn is 65 and Cl is 35.5. बिल्कुल आराम से. एवोगाड्रो से क्वेश्चन है, मोल से ही समझ जाइए.
मोल और किसी में नहीं आता, मोल सिर्फ एवोगाड्रो में आता है, समझे? या ग्राम एटम्स में बोल सकते हैं, तो अलग ही होता है ग्राम एटम्स। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क, मास ऑफ ZnCl2 कितना दिया है 272 ग्राम, या क्वेश्चन से फॉर्मूला से बताइए क्या आएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मोल्स 1 मास ZnCl2 कैसे आएगा बेटा, Zn है 65 प्लस 2 into 35.5, what will it be 136, आगे 136, yes 71, 136 is 37, समझ गया ना कैसे, दो चीजें क्वेश्चन से, दो ही चीजें फॉर्मूला से, बोलिए। हाँ वो 272 है बेटा, ठीक है। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, हम लिखेंगे 136 ग्राम ऑफ ZnCl2 has 1 moles, समझे आप? So 1 gram of ZnCl2 will have how many moles? 1 upon 136 moles. Then how many grams? 272 grams of ZnCl2 will have 272 upon 136 moles. Choose. Answer is 2 moles. Understood or not? Is that clear to you? Easy बेटा। तो हमें पता चल गया है कि ZnCl2 के कितने मोल्स हैं आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2, कितने आपके पास मोल्स, 2 मोल्स। बट हमसे ZnCl2 तो पूछे नहीं, Zn पूछा है आयंस। पूछा है ZnCl2 जब डिसोसिएट होगा तो कितने Zn आयन बनेंगे, एक Zn2 प्लस और कितने क्लोरीन। सिंपल लॉजिक सोचिए, अगर ये मैं 2 मोल्स लाया हूं तो जिंक कितने बनेंगे, 2 मोल्स और 4 मोल्स। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक चॉकलेट में एक चॉकलेट और 2 स्टिकर्स निकलते हैं। एक चॉकलेट के अंदर से क्या निकलता है, एक चॉकलेट, अगर आप लाते हैं चॉकलेट पैक में एक चॉकलेट और 2 क्या निकलते हैं, तो 2 चॉकलेट में कितने निकलेंगे, 2 चॉकलेट और 4 स्टिकर्स निकलेंगे ना। अगर 1 देखिए यहाँ पे यही तो है, 1 मोल में ये 1 मोल आ रहा है और ये 2 मोल बन रहे हैं। अगर मैं 1 मोल लाऊं ZnCl2 का तो क्या बनेगा, इसमें एक ZnCl2 में से एक ही Zn आयन तो निकलेगा, 2 ZnCl2 में से 2 Zn आयन, 3 ZnCl2 में से 3 Zn आयन, तो 1 मोल ZnCl2 में से 1 मोल Zn आयन। अब अगर पूछ ले कितने Zn आयन होंगे तो पता कितने होंगे, 2 into 6.023 into 10 to the power 23। अगर पूछ लेता यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे इसके, तो 4 into 6.023 into 10 to the power 23। अगर इसका वॉल्यूम क्या पूछेगा, नहीं वॉल्यूम पूछेगा। ये समझ आया आपको कि ZnCl2 के कितने मोल्स हैं आपके पास, 2। एक ZnCl2 कितने Zn आयन बना सकता है, एक Zn आयन, 2 ZnCl2 कितने Zn आयन बनेंगे, वही तो लिखा है। अगर ये एक है तो एक Zn आयन बन रहा है, अगर 2 होते इसके तो 2। अगर ZnCl2 के 2 मोल लाए हैं, 2 मोल को छोड़िए, 2 ZnCl2 आपके पास है तो उसमें से कितने Zn आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 Zn आयन, so 2 मोल से 2 Zn। बट उसी Zn आयन में से एक Zn आयन में से कितने Cl प्रोड्यूस होते हैं, एक ZnCl2 में कितने क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं सर, 2 ZnCl2 में 4, तो वही तो लिखा है। कंफ्यूज नहीं है, बहुत सिंपल है, इससे समझ नहीं आ रहा। मोल को हटा दीजिए, एक मोल एक Zn में टुकड़े करते हैं अगर एक Zn के, एक Zn 2 Cl, 2 Zn हुए तो 2 Zn और 4 Cl। That's it. So this topic is finished, beta. All right.